Hello, friends. Welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends. Actually speaking, the most opportune time, or actually the most difficult time that I have come to you with a very important video. Now, सबसे पहले तो सिर्फ 3 दिन रह गए. Now, when I say 3 days for the toughest exam in the world, my friends, पहली बात मुझे आप सब लोग को congratulate करना है. Congratulations for the reason that you are taking the toughest exam in the world. It is मतलब ये कोई एग्जाम है, ये तो एक ह्यूज चैलेंज है. इट्स लाइक अ वॉर. और मैं हमेशा बोलता हूँ इट इज लाइक द डीएनए म्यूटेशन प्रोग्राम. बिकॉज एक बार तुमने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया, एक बार यू गेट थ्रू दिस एग्जाम, देन यू विल बी डिफरेंट पर्सन. यू विल चेंज योर लाइफ, योर फैमिलीज लाइफ, योर सोसाइटी, प्रॉब्ली योर एंटायर कंट्री. ऐसी एग्जाम की प्रिपरेशन में तुम में से कुछ लोगों ने साल, किसी ने 2 साल, शायद ज्यादा, यू हैव गिवन इट अप. नाउ द पॉइंट हियर इज कि सर 3 दिन रह गए, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम ग्लास ऑफ वाटर. सम जिसमें आधा पानी भरा होगा तो बोलेगा यार ये हाफ फुल है, तो दूसरा बोलेगा ये हाफ एम्प्टी है. अब ये नेगेटिव अप्रोच है कि पॉजिटिव अप्रोच है, ये तुम्हारी मर्जी. मेरे हिसाब से द लास्ट फाइन ट्यूनिंग, द लास्ट फाइन ट्यूनिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एनी एग्जाम, एनी प्रिपरेशन, एनी एंडीवर इन योर लाइफ. और मैं यहां पर दोस्त 3 days में मस्ट डू इंपॉर्टेंट थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा. नाउ देयर कुड बी सम अमंगस्ट अस जो बोलेंगे क्या हो सकता है सर 3 दिन में बर्बाद होगी सर, जिंदगी कुछ भी लाइक नहीं रही. और दूसरे लोग बोलेंगे कि सर वो लास्ट 3 days में जो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं विच इंक्रीजेस आवर चांसेस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम, प्लीज शेयर. So please watch this, and in a very limited period of time, we'll go very fast with this, but I want you to make sure that you do a checklist at the final. जैसे बोलते हैं ना एयरपोर्ट में, आपने कभी प्लेन में जाते जाते ऐसे कभी ऐसा देखा पायलट के कॉकपिट में वो एक लास्ट मोमेंट चेकलिस्ट चेक कर रहे होते. Okay, I hope everything is fine and we are ready to go. So we are on Unacademy, which is the largest online learning platform in India, and we will see the best of the best educators from all over India teaching thousands and thousands of aspirants together. So we have just had the awesome result of Jagriti University, was ranked 2, and we are very very proud of our other rankers, and we have got a beautiful result, and I am almost 100% sure कि this number will increase, and कल बहुत जल्दी तुम्हारी फोटोग्राफ्स यहाँ पर ही होंगी. सो ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर माय कोड SIDLIVE, SIDLIVE, and you will be able to be a part of Team SIDLIVE. ये Unacademy the largest ever team formed है, और thousands and thousands of aspirants have joined us, and we are very very proud to say that we have mentored them to success. So there are certain very big features like the live mentoring platform which is available, the raise the hand option जिसमें हम एक्चुअली आपसे बात कर सकते हैं. इट इज ऑलमोस्ट लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स टुगेदर. द प्लस क्लासेस एंड द आइकॉनिक क्लासेस आर ऑल अवेलेबल अंडर वन रूफ, और सिर्फ तुमको ये कोड याद रखना है SIDLIVE, SIDLIVE, और तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो यू लुक एट दीस प्राइसेस एंड इसमें 10% माइनस करो, तुम्हें मिल जाएगा. पहले ही बहुत रीजनेबल है माय फ्रेंड्स. टेक अ वाइज डिसीजन नाउ. मैं कई सालों से बात बोल रहा हूं, और जितने लोगों ने मेरी ये बात मानी है उनसे पूछो उनको कितना फायदा हुआ. So make sure that either you want to join the iconic classes where you will get 10% discount, or for that matter the plus classes, everything under one roof. सिर्फ एक कोड याद रखना है SIDLIVE, and I'll be very very happy to teach you. So whether you want to attend batch courses, whether you want to attend the weekend current affairs simplified batches, or the learner's journey method, make sure that you become a part of it. Use the code SIDLIVE and be a part of us. So you're a wise gang of students, my friends. You know what is the best for you. Make sure that you take a wise decision. But important thing is you take this decision now. Okay? समय निकल जाने के बाद रोके क्या फायदा है. मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक पेन लो, एक पेपर लो, एंड जो मैं तुम्हें इस टाइम बोल रहा हूँ क्विकली जॉट डाउन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, और मेक यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट आई एम सजेस्टिंग. मुझे ऐसे ही इस सब्जेक्ट का पूरे कंट्री में एक्सपर्ट नहीं माना जाता. कोई वजह है, उस वजह को तुम बाद में पता कर लेना. अभी के लिए तुम फायदा उठा लो. सो सबसे पहले हमारे पास है 3 दिन. When I have 3 days as on the day I'm making this video, this is make or break time. अब ये मेक और ब्रेक टाइम में इवन मोर इंपॉर्टेंट, वैसे तो हर मोमेंट पे ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इवन मोर इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक
प्लान ए प्लान बी काइंड ऑफ मेथड हो. अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश. हर इंसान जिसने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या यूपीएससी का फॉर्म भरा होगा ना, उसको ये विश तो है, उससे सपने तो देख ही लिए होंगे, संजो लिए होंगे, हाय मैं डीएम बन गया. ना 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 सर, डीएम बनने में मजा नहीं आएगा. ऐसे कर तो डीआईजी बन जाते, एसपी बनेंगे, कुछ तो ऐसा बनेंगे. नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, एम्बेसडर बन जाते. यह विश का क्या, ओके, इसका कोई अंत नहीं है. द आइडिया इज इफ यू डोंट हैव अ प्लान, इट्स नॉट अ गोल, देन इट इज मियरली अ विश. और ख्वाबो ख्यालों में तो तुम जो मर्जी बन जाओ. मेरे हिसाब से एक सिंसियर, इंटेलिजेंट, वाइज एस्पिरेंट वो होता है जिसके पास एक रॉक सॉलिड प्लान है, ताकि कोई भी इमोशनल डिसीजन ना लो तुम. ओके, कुछ उल्टा सीधा हो भी गया, क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आ भी गया, यू नो व्हाट टू फॉल बैक टू. तुम्हारे पास 3 दिन है, इस टाइम पे बहुत सारे अंदर से ऐसा अपीवल्स आ रहे होंगे, भगवान मेरे साथ क्या होगा, दुनिया भर की चीजें. डोंट वरी, फॉल बैक टू द प्लान. यू विल गो बैक टू द प्लान, यू विल फील फार बेटर. लेट्स मेक अ प्लान. ओके, सो सबसे पहले कुछ बातें, ये बात याद रखो. क्या बात याद रखनी? सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि तुम ह्यूमन बीइंग हो. ये क्या बात है? तुम ह्यूमन बीइंग हो माय फ्रेंड. वी आर ऑल ह्यूमंस. और हमारे ह्यूमन होने के नाते कुछ चीजें मैजिकल नहीं होगी. तो हैरी पॉटर की मूवी छोड़ दो. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, यू कैन नॉट अवॉइड. कुछ चीजें होके ही रहेंगी, और वो होके रहेगी इज नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. बेटा, जिंदगी गुजर गई मेरी. ओके, इट्स ऑलमोस्ट द एंटायर करियर आई हैव बीन टीचिंग यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स. मुझे एक साल भी ऐसा नहीं पता चला जब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आए. द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज प्रिपेयर फॉर इट. लास्ट ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे अपनी क्लास के. स्क्रीनशॉट्स माय फ्रेंड, मुंह जबानी नहीं, ओरली हवा में नहीं बोला था मैंने. स्क्रीनशॉट मैंने अपनी क्लास के लिए और स्पेशल क्लास में प्रूव करके दिखाया था कि ये जो क्वेश्चन आया और ये मैंने उसको पढ़ाया. उसमें 20 में से 19 क्वेश्चन आए थे. जो 20वां क्वेश्चन था ना लीगल एड का, वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो आके रहेगा. अब मेरे पास 2 चॉइसेस है. या तो मैं उस एक क्वेश्चन के इसमें रोता रहूं, है यार अगली बार मैं ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में भी कुछ ना कुछ करूंगा, या मैं रिलिश करूं एंड एंजॉय करूं एंड आई पैट माय बैक एंड आई कांग्रेचुलेट माय लर्नर्स कि यार तुम्हारे 19 ठीक है. मेरे ख्याल से मैं 19 वाला ठीक हूं भैया, हम बड़े पॉजिटिव लोग हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ज्यादा टेंशन मत लो, ये आके ही रहेंगे. इसके लिए स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. करोगे तुम, you will be only at the peril of your career. दूसरी बात है कंफ्यूजन एंड फॉरगेटिंग. इस टाइम पर होके ही रहेगा. जो टॉपिक तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें इस टाइम पे आर्टिकल्स उड़ जाएंगे, तुम्हारे इस टाइम पे बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं याद आएंगे, टीपीएसपीस नहीं याद आएंगे. क्यों? फॉगी होने लगता है ब्रेन. इतना ज्यादा ब्रेन पर प्रेशर आने वाला है, इतना कंटेंट में. एक बार तुम्हारा, मेरे को लगता है एक दिन एक ऐसा टेस्ट पेपर बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ यूपीएससी सिलेबस को पूछा जाना चाहिए. ओके, एक सिलेबस पे एमसीक्यूज बनाओ. इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट माय फ्रेंड्स. यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड, यू आर गोइंग टू गेट द सो कॉल्ड ओवरवेल्म्ड विद टन्स ऑफ डेटा दैट यू आर रिमेंबरिंग. और तुम्हें ऐसा लगेगा, आई एम अगेन सेइंग, मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हारा एग्जाम में नहीं होगा, एग्जाम में याद आ जाएगा, अपने आप आ जाता है. पता नहीं कैसे मैजिकल होता है. ब्रेन हैज नथिंग एल्स बट न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो अपने आप याद आ जाता है. इस टाइम पर इफ यू आर गेटिंग स्ट्रेस बिकॉज़ ऑफ कंफ्यूजन, डोंट बी. कोई जरूरत नहीं है, अपने आप जस्ट स्टडी विद अ मेटिकुलस प्लान, इट विल कम टू यू. डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पार्ट. मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूं, किसी को बुला लो, ओके, वो होगा उसका आईक्यू 500. सर 500 आईक्यू किसको होता है? होगा यार. किसी को भी टॉपर को बुला लो, और अगर वो ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के ये बात बोल दे कि मुझे सारे टॉपिक्स आते थे, सारे सब्जेक्ट्स के, जस्ट नॉट पॉसिबल. डोंट डू दैट पार्ट. मैं ऑब्वियसली इसका एक तुम्हें रेमेडी दे सकता हूं, दैट इज एन एक्सपर्ट टिप. मैंने हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स अभी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा. ये याद रखना, हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है. इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज जस्ट एन इंडिकेटिव लिस्ट. तो ये मस्ट डू टॉपिक्स है. ना ना ना, ये मस्ट डू टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि दीस आर ओनली टू डू टॉपिक्स. मैंने बोला पढ़ लो, जितना पढ़ना पढ़ लो, लेकिन ये टॉपिक जरूर करके जाओ. सो दिस इज समथिंग जो मैंने स्पेशल क्लास में लिया था, बट फिर मैंने सोचा क्यों ना पूरे देश को पता चल जाए, और फिर तुम लोग मुझे बाद में थैंक यू बोलो तो अच्छा लगेगा मेरे को भी, क्योंकि फिर तुम्हें ये भी पता चलेगा कि 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन नाम की वस्तु होती क्या है.
सो मेक श्योर दैट यू मेक अ लिस्ट। तो पेन निकालो, पेपर निकालो, लिस्ट बना लो और चेक लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 ये टॉपिक्स जरूर हो जाने चाहिए इन टर्म्स ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। So must do topics for UPSC Civil Services Examination 2021. Get ready to make a list of this part. So start करते हैं। Okay. So सबसे पहले हमारे जो टॉपिक्स है उनको मैंने नाम दिया ब्रेड एंड बटर टॉपिक्स। तो ये ब्रेड एंड बटर टॉपिक्स होते हैं, मतलब ये तो करना ही करना होता है। Okay. You just can't ignore these topics. You have to do these topics. तो ये वो टॉपिक्स होते हैं जो 70-80% ऑफ द टॉपिक्स मतलब सिलेबस को कवर कर जाते हैं। अब इसके दो चॉइसेस है। एक वो स्टूडेंट्स है जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, ओके, जो लोग मुझसे पढ़े हुए तो वीडियोस में से तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे जो लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ तो तुम अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लक्ष्मीकांत खोल लो एंड स्टार्ट मेकिंग अ नोट ऑफ इट पार्ट। ओके, सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आर वी रेडी? ओके, सो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ टॉपिक्स आर इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स। ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स में आएगा आपके पास फेडरल स्ट्रक्चर, प्रीएम्बल, सैलिएंट फीचर्स। पहले देखते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है सर? सब कुछ करना है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से लेकर स्टार्ट करना है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना है, फेडरलिज्म की स्पिरिट करना है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में फेडरलिज्म का क्या रिलेशन है वो पढ़ना है, इंडिया की फेडरेशन यूएसए से अलग कैसे है ये पढ़ना है। ओहो सर, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, फेयरवेदर फेडरलिज्म क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कब से स्टार्ट हुआ, जोनल काउंसिल का क्या रोल है, एसआर गवर्नमेंट जजमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है, सब कुछ करना है। एंड थोड़ा टाइम मिल जाए तो सेंटर स्टेट रिलेशंस भी इससे करना है, सब कुछ। वेरी गुड। सेकंड, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं बोलता हूं एवरग्रीन टॉपिक है। यू जस्ट कांट इग्नोर दिस टॉपिक, यू हैव टू डू दिस टॉपिक इन एंड आउट। और जब मैं प्रीएम्बल बोल रहा हूं तो तुम्हें हिस्ट्री, तुम्हें जजमेंट्स, बेरुवारी केस, केशवानंद भारती केस, सब कुछ, आईडी कार्ड, ये जो क्या है अलोंग विद द कंटेंट ऑफ द प्रीएम्बल, तुम्हें पूरा प्रीएम्बल वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज होना चाहिए। अगर नहीं होगा बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम इन एंड आउट। कभी-कभी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ऐसे सीक्वेंस में भूल लेते हैं। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemn resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our constituent assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution full stop। इसी स्पीड पे तुम्हें प्रीएम्बल इन एंड आउट मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर्स तो एक तरह से डिज्नी पे घूमने जाना होता है, डिज्नी वर्ल्ड में जाओ तो पूरा सारे झूले झूल के आने, वही वाली बात है। सो यू हैव टू नोटिस द एंटायर पॉलिटी का सारा कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू नो इन एंड आउट। मेक श्योर दैट यू नो दिस इन एंड आउट। इसमें कोई सेकंड थॉट्स मत रखना। लेकिन जब मैं सेलिएंट फीचर्स की बात कर रहा हूं तो ये वो उस पार्ट में ज्यादा जाता है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है, मिक्सचर है, ओके, वी हैव आवर ओन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज कंपेयर्ड टू प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, वो वाला पार्ट। मेक श्योर दैट यू नो दिस बिकॉज इसमें ये लो लाइन फ्रूट्स है। ओके, वैसे तो ये तब भी आ जाता है जब तुम पूरा कर लो तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट अभी अगर तुम्हारे पास 3 दिन है, मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस। ये खत्म, अच्छी खासी बहुत अच्छी शुरुआत है। फिर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। जब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स करो तो सारे एक्ट्स करो, सारे एक्ट्स मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, मेक श्योर दैट यू नो ऑल ऑफ इट। ये बड़ा ही जरूरी पार्ट है, अगर ये नहीं करोगे तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, When I tell you this part, इसमें टेक्निकल वर्ड्स जरूर पढ़ लेना। जैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल डायरेक्टरी वाज सेंट्रल, प्रोविंशियल डायरेक्टरी वाज अबॉलिशन, सेंट्रल डायरेक्टरी वाज इंट्रोड्यूस, कौन सा एक्ट, ये वो टर्म्स आने चाहिए। ये तुम्हें शॉर्ट नोट लिखने को नहीं बोल रहे। सो मेक श्योर दैट यू नो द टेक्निकल वर्ड्स कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, डबल गवर्नमेंट कब से आया, ओके, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट कब से बनी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। गेट दोस टेक्निकल वर्ड्स इन एंड आउट बिकॉज़ प्लीज रिमेंबर तुम्हें शॉर्ट नोट लिखने बोले, तुम्हें एमसीक्यूज बनाने को बोला जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओ इनके लिए तो हमें बोलना ही पड़ेगा। सो यू शुड नो एवरीथिंग। ये बना कैसे, सैंक्शन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इलेक्शन कैसे था, कितनी सीट्स थी, ओके, मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था, कमिटीज कौन से थी, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था, मेथड क्या था, कंसेंसस कहां से आया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कब से कब तक था, कब तक वो डुअल रोल था, इन एंड आउट। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। ओ भाई, इसके बारे में कुछ भी मत छोड़ना बाबा। क्यों छोड़ना ही नहीं? ये तो एक ऐसा लेवल है जहां पर यू विल गेट द एज। तो मेरे जो स्टूडेंट्स है जो मुझसे पढ़े हुए प्लस क्लासेस में, उनको तो मालूम है हमने इस हद तक किया कि किताब में से आवाज आए, ओके बस यार, और नहीं पढ़ा। सो वो बड़ा जरूरी है। उसमें सारी की सारी जजमेंट्स पढ़नी मालूम होनी चाहिए, तुम्हें सारे के सारे फीचर्स मालूम होने चाहिए, करंट अफेयर्स मालूम होने चाहिए। मेक श्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस वन। फिर चलो यूनियन पे। जब यूनियन पे जाओगे तो तुम्हें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, मोशंस क्या होते हैं, मोशंस कैसे होता है, जीरो आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, नो एवरीथिंग अबाउट इट पार्ट। देन यू हैव पार्लियामेंट्री कमिटीज। एक मैंने टॉपर से है ना एक बात की थी कि टॉपर एक बात बता,
कि तेरे को सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगा, कौन सा टॉपिक? बोला सर पार्लियामेंट्री कमेटी। फिर मैंने एक और टॉपर से पूछा, ऐसे मैं बहुत सारे सालों से टॉपर्स से मिलता था, तो सब लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत डिफिकल्ट लगता है। रीजन ये, एक तो बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज है, फिर कॉम्पोजिशन कंफ्यूजिंग हो जाती है, देयर इज नो सबस्ट्रेटम जिससे कुछ याद रहता है, बिकॉज वो अगर रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग हो गया। सो नो एवरीथिंग अबाउट दिस, किसमें लोकसभा के मेंबर्स है, किसमें राज्यसभा के मेंबर्स है, कौन से सेलेक्ट कमेटी है, कौन से ज्वाइंट कमेटी है, कौन से एडहॉक कमेटी है, कौन से स्टैंडिंग कमेटी है, नो है, एंड फंक्शंस आल्सो ऑब्वियसली। फिर पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, ये थोड़ा इजी होता है, जो ज्यादातर लोगों को आता है, लोकसभा का कॉम्पोजिशन क्या है, राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या है, चेयरमैन कौन है, स्पीकर क्या है, फंक्शंस क्या है, एक्सेट्रा। इसमें जब आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बोल रहे हो ना, मेक श्योर दैट यू नो दिस, ओके। इसमें मेजॉरिटीज भी याद कर लेना, बहुत अच्छा, बहुत कॉमन, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब यूनियन होगा तो फिर एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यू कॉम, इसमें प्लीज सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कर लेना, 74 78 की कॉम्बिनेशन क्या है, व्हेन वाज इट बाइंडिंग, व्हेन वाज नॉट बाइंडिंग, वीटो का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑर्डिनेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। Make sure that you know all of these parts. And when I say proceedings, so please bill भी भूलना मत, passage of budget भी, cabinet committees, oh, anything to do with the prime minister, make sure that you do it, because this is a parliamentary democracy. Prime minister is the most powerful office practically, so make sure that you know it. जो यूनियन में लिखा है ना बेटा, वो स्टेट में कर देना, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस लिखा हुआ है, ये लीगल वे होता है, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है पार्लियामेंट तो नीचे कर देना स्टेट, ओके। ऊपर लिखा है यूनियन एग्जीक्यूटिव, नीचे कर देना स्टेट एग्जीक्यूटिव, ऊपर लिखा है प्रेसिडेंट तो नीचे कर देना गवर्नर, एंड प्राइम मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर, तो सब कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग, मेक श्योर दैट यू डू इट। यहां तक हो गया ना बेटा, तुम्हारा 60-70% टॉपिक तो टच हो गया, अब खुश हो जाओ। अच्छा, अब इस मौके पे तुम अपने आप को एक कप चाय दे सकते हो, गरम गरम चाय, ओके, ये तुम्हारी शाबाशी है। अगले स्टेप पर आ जाओ। नेक्स्ट इज रिलेटेड टॉपिक्स, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंटी डिफेक्शन और रोल ऑफ गवर्नर। तो ये तो पूरा आर्टिकल 102, ओके, 1 ABCD, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2, 191 1 ABCD, ओके, ये सब कुछ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, स्टेट लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, ये सब कुछ कर लेना। एंटी डिफेक्शन, ओह, नो एवरीथिंग अबाउट इट, भूलना मत। 10th शेड्यूल क्या होता है, मर्जर क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, कर्नाटका में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का क्या सिनेरियो है, इज रेजिग्नेशन कंसिडर्ड टू बी डिफेक्शन, जुचिलो केस, डू एवरीथिंग ऑफ दिस पार्ट। गवर्नर, ग्रे एरिया, ओहो, अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, SR4 में केस, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब कुछ एक्चुअली इमरजेंसी, ये सब यहाँ से भी रिलेट हो जाएगा। गवर्नमेंट बाय द राज, ऑफ द राज, फॉर द राज, ये पूरा का पूरा पोजीशन, प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नर्स रूल जब जम्मू एंड कश्मीर का था, ये सब कुछ कर लेना। जब ये करोगे ना बेटा, तो तुम्हें एक फायदा और हो जाएगा। अब क्या फायदा हो जाएगा? इसके साथ तुम्हें पंछी कमीशन, सरकारी कमीशन, ये सब भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। वाह सर, वेरी गुड। तो जोनल काउंसिल, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये सब भी जोन में इसी डायरेक्शन में चले जाना, बहुत अच्छा रहेगा। फिर है इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी है डोंट मिस एनीथिंग वाले पार्ट है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि फेडरलिज्म इतना इंपॉर्टेंट है, तो फेडरलिज्म का एक्सेप्शन दैट इज इमरजेंसी, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो सब कुछ बड़ा कनेक्टेड है भाई, हम तो बड़े कनेक्टेड पढ़ाते हैं, ओके, अंडरस्टैंड, सब शायरी है, ओके। ऐसा अपने मर्जी से जो मुझे पढ़ा तो फिर क्या फायदा हुआ, ऐसे थोड़ा हमने अपना नाम बनाया। मेक श्योर दैट यू नो दिस पार्ट। फिर है लोकल गवर्नमेंट, या बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना मेरे को ऐसे बहुत बोले होता है लोकल गवर्नमेंट से, यूनियन स्टेट तक ठीक है, बाकी हम सह नहीं पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कर लेना, एक तो बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है, बड़े आराम से कर सकते हो। ये बोरिंग का बात होना है, पिक्चर देखने आए हो क्या? नहीं। तो मेक श्योर दैट यू डू लोकल गवर्नमेंट। व्हेन आई से लोकल गवर्नमेंट, 73rd 74th अमेंडमेंट, उसकी हिस्ट्री, बलवंत राय मेहता कमेटी से लेकर यहाँ तक सारी कमिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेसा, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर क्रिटिसिज्म, सक्सेस, मेक श्योर दैट यू नो दिस एंटायर, और इसमें थोड़े बहुत हिस्टोरिकल डेट्स भी याद रख लेना। फिर मेरे घर की बात, जुडिशरी। अब ये जुडिशरी ऑब्वियसली घर की बात है, बिकॉज मी बीइंग अ लॉयर तो मुझे ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दिस। तो इसका ना एक तरीका है, इसमें आर्टिकल 124 टू 147 सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर लो, और फिर उससे रिलेटेड हाई कोर्ट भी कर लो। अब बहुत सारे लोग हाई कोर्ट नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं करते। जब सब कुछ तो कर लिया तुमने सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे रिलेटेड जितने पार्ट्स है वो हाई कोर्ट कर लो। 90% तो मैच ही है, 10% जो अलग है वो भी कर लो। जब ये करोगे ना, डोंट फॉरगेट टू डू द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, लोक अदालत एंड लीगल एड। लीगल एड पे पिछले साल क्वेश्चन आया जो बहुत डेंजरस था, सो मेक श्योर, मेरा ऐसे मुझे लगता है कि ये ऐसे गेस वर्क है, बट ऐसे ना यूपीएससी आमतौर पे रिपीट कर जाती है ऐसा कोई क्वेश्चन इन थीम काइंड ऑफ अ फॉर्म, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा बहुत थीमेटिक फॉर्म में रिपीट कर जाती है। अगर कोई क्वेश्चन पिछले साल बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है तो पढ़ लो, या लीगल एड 5-10 मिनट तो लगता है। मेक श्योर दैट यू डू इट। ये 3 टॉपिक्स, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, डू इट, बहुत इंपॉर्टेंट। जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स और ये जुडिशियल ओवररीच, ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन पूछने के बहुत हाई चांसेस है। इस पे एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स देख रहे हो ना, इसे कोर्ट के लिए मत करना, ये हाउस के लिए भी कर लेना। तो कोर्ट, हाउस प्रोसीडिंग्स एज इन द पार्लियामेंट का,
तो इसमें 105 194 भी आ जाएगा तुम्हारा। तो मेक श्योर दैट जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनको बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड इट। जिनके पास नहीं है वो प्लीज एक बार टिक मार्क्स मारते चले जाओ। ये बार बार न्यूज में आ रहा है। ग्राम न्यायालय तो बहुत पुरानी इतिहास है, इसको छोड़ भी नहीं सकते, बट इसको 5 मिनट लगे, उसमें कौन सी देर लगी। एनजीटी और ट्रिब्यूनल्स, मेक श्योर दैट यू डू दिस। और ये मेरे वीडियो से कर लो, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन। और ये लाइव स्ट्रीमिंग आजकल न्यूज में आ रहा है, इसलिए तो इसमें स्वप्न त्रिपाठी केस वगैरह वगैरह, मेक श्योर दैट यू डू इट। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जुडिशरी छोड़ के मत जाना। जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट इज द हेडलाइनर, मेक श्योर दैट यू डू दिस पार्ट। फिर अदर्स, इसमें क्या है, अब मैं क्या का ना, मैं बड़ा पुराना फैन हूं कि इन द सेंस कि ये उस स्टेज पर पढ़ना होता है जब पहले वाले सारी चीजें पढ़ ली गई है। तो जब पहले वाली सारी चीजें पढ़ ली गई है तो क्या बहुत अच्छे से कनेक्शन हो जाता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमिटी एंड फेडरलिज्म एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये कर लो, सारे कमीशंस कर लेना। ओके, मैंने से सारे कमीशन, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीवीसी, मेक श्योर दैट यू डू ऑल द कमीशन, दे विल आस्क यू। लेकिन मेरा थोड़ा सा रुझान इस टाइम पर एनएचआरसी पे, आई एम नॉट आस्किंग यू टू फर्स्ट डू एनएचआरसी एंड देन डू ऑल कमीशन। मैं तुम्हें बोल रहा हूं पहले सारे कमीशन कर लो, फिर एनएचआरसी कर लो सर। फिर सीबीआई, सीवीसी, लोकपाल, सीआईसी, ओके, ये सब कनेक्शंस में एक साथ चले जाना और उससे रिलेटेड लॉज जरूर कर लेना, आरटीआई, यूएपी, एनएसीए और सिटीजनशिप। मैं सिटीजनशिप के तारीख में क्या बोलूं, सो मेक श्योर दैट यू नो ऑल दीस टॉपिक्स एंड इन एंड आउट। जब मैं सिटीजनशिप की बात बोल रहा हूं तो ये पूरा का पूरा करना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लेकर आसाम अकॉर्ड एंड एवरीथिंग, ओके, एंड देन कम टू द रीसेंट मोस्ट टॉपिक। एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है, दैट ऑब्जर्वेशन है कि करंट अफेयर्स 40 to 50% ऑफ द एग्जाम का पैटर्न हो चुका है, लेकिन उसी को स्टैटिक में पढ़ना है। तो मैंने जैसे पढ़ाया हुआ है क्लासेस में कि मैं करंट अफेयर होगा और उससे रिलेटेड स्टैटिक पढ़ाया, तो वैसे ही तुम भी करो। करंट अफेयर को करंट अफेयर पर से में मत जाओ, उसको कनेक्ट करो टू द स्ट्रक्चर। उसमें मेरे हिसाब से कोविड रिलेटेड जरूर करो। फॉर एग्जांपल एमपी लैब्स सस्पेंड हुआ था, ओके, आरोग्य सेतु ऐप, ओके, वेलफेयर स्कीम्स, ओके, यू नोटिस ऑल दिस पार्ट, ओके, जो भी किया वो कोविड रिलेटेड। और इसी से यूनाइटेड नेशन भी कर सकते हो, जैसे WHO, यू कैन ऑलवेज डू दिस पार्ट। सो यू कैन ऑल द एंटायर concept should be around COVID, okay? So section 144, lockdown, okay? So ये सारे के सारे चीजें COVID related, इसमें तो बहुत सारे तो मैंने YouTube पे वीडियोस बनाए, you can do this। ये भी कर लो, फाइनेंस कमीशन से ये COVID related भी है एक तरह से। कैसे? Because अभी जो रिपोर्ट आई उसमें था during the COVID times, ये भी ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती है कि वेलफेयर स्कीम्स का क्या करना है। अब वेलफेयर स्कीम्स एक्चुअली तो गवर्नेंस का भी पार्ट हो गया और इससे भी रिलेटेड हो गया, लेकिन इसको ना डबल गेस नहीं, इसको मतलब यू कांट सेकंड गेस की क्या किया जा सकता है। बट मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है कि अगर तुम वेलफेयर स्कीम्स रिवाइज कर ही रहे हो, वैसे तो तुम्हें सारे ही याद होने चाहिए क्योंकि मैंने तो सारे ही पढ़ाई है, लेकिन जो नहीं भी कह रहे तो जो प्राइम मिनिस्टर नाम से स्टार्ट होता है ना, जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री, यू नो, सो मेक श्योर दैट यू डू दोस, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, बट इससे कम से कम एक मेजर पार्ट, सब्सटैंशियल पार्ट खत्म हो जाएगा। बजट मैंने हमेशा ही बोला ये हर साल का स्टैटिक और करंट कंबाइंड है, बिकॉज़ हर साल आना है भाई ने, तो मेक श्योर दैट यू डू इट। यूनाइटेड नेशंस यही होगा और यही मैं तुम्हें बाद में आईआर से रिलेटेड भी पढ़ा दूंगा। यूएनओ पढ़ना है, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, WHO, मोस्ट इंपोर्टेंट, मेक श्योर दैट यू नो दिस। और ये देखो, ये भैया एक जो लॉयर है ना उसके लिए कलर कोडिंग इससे ज्यादा क्या होगी, रिजर्वेशन। मैंने इसको कलर कोड किया है, तुम्हें दिखा है क्या सॉलिड कलर कोडिंग किया। रिजर्वेशन को अपने कीमती समय में से 1 घंटा अलग से दे दो और सब कुछ पढ़ लो, हिस्ट्री से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 335 से लेकर मंडल कमीशन, इंदिरा सानी केस, नेम इट, ओबीसी रिजर्वेशन, EWS, नेम इट, एवरीथिंग यू शुड बी इन एंड आउट। दिस इज अ हॉट क्वेश्चन एंड मेक श्योर दैट यू नो दिस पार्ट। Another topic are what are called trap topics. So trap topics, trap भी करेंगे। पहले देखो क्या करना है, bread and butter, फिर क्या करना है, current affair। ये सीक्वेंस में जाना जरूरी है। फिर ट्रैप टॉपिक्स देखो, जैसे AFSPA पे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वैसे तो ये पुराना हो गया लेकिन पूछने को पूछा जा सकता है। 370 ये भी थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन पूछने को पूछा जा सकता है। 371 फिर ये अभी स्पेशल स्टेटस से भी क्वेश्चन आते लेकिन आ सकते हैं। फिर ये डॉक्ट्राइन्स एंड जजमेंट्स, ओके, तो ये सारे डॉक्ट्राइन्स हो गए, डॉक्ट्राइन्स ऑफ सेवरेबिलिटी, पिथ एंड सब्सटेंस। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ी वार्निंग देना चाहता हूँ, वार्निंग सुनाई दे रही, ये डॉक्ट्राइन्स एंड जजमेंट्स केवल वो करे जिन्होंने इसको पहले किया हुआ है, ओके, चाहे मेरे साथ चाहे खुद के अपनी समझदारी से किया, मुझे मतलब नहीं। इस टाइम पर बिल्कुल फ्रेश मत स्टार्ट कर देना, समय नहीं है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसी तरह से सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसको किस हद तक करोगे ये तुम्हारी पहले की प्रिपरेशन पे डिसाइडेड है। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो,
और अगर नहीं होगा, अगर तुम्हें पहले से याद है तो ही जाके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और डॉक्ट्राइन्स वगैरह सब कुछ याद करना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिसको जितनी याद हो सकती है उतनी याद कर लो, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ओके, कि आप पहले वाली ज्यादा आएगी कि बीच में ज्यादा आएगी, लेकिन फिर भी 42nd 44th तो मालूम ही हो जाए। आई होप यू रिमेंबर अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेलफेयर स्कीम जितनी कर लोगे उतना अच्छा, ओके, बट एज आई सेड प्राइम मिनिस्टर वर्ड से वाले ज्यादा स्टार्ट करना। ये क्वेश्चन ना जो दो ये वाला, ये मेरे मन की वो नाइटमेरिश है, मुझको कभी कभी सपना आ जाता है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि आपको ऐसे प्रेसिडेंट की लिस्ट दे दी, प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट दे दी और बोला कि जो पहले कौन से, दूसरे कौन से, तीसरे कौन से, सो कैन यू डिवाइड इट, तो ये तो तुम्हारी मर्जी है। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑन दिस पार्ट। Okay, sorry for the disturbance. Now, so this is another topic. अब इससे related एक और topic आ जाएगा, and that topic related is my choice question. अब जैसे होता है ना, कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो शेफ स्पेशल होता है, तो कुछ मेरे भी स्पेशल टॉपिक्स होंगे। So my choices, okay, these are some topics which are my choices. So my choice में मैंने बोला हुआ है basic structure related questions. ये questions जरूर कर लेना। This is something that I always think you should know everything. और ये इसमें historically होता है। फिर से क्या हो जाएगा, 9th शेड्यूल भी समझ में आ जाएगा, ओके, जुडिशियल इनोवेशन भी समझ में आ जाएगा, ओके, गोरखनाथ जजमेंट, केशवानंदापाती जजमेंट, यू विल ऑटोमेटिकली नो दिस पार्ट। मीनिंग ऑफ टर्म्स, ये भी एक बड़े रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है, एटसेट्रा। देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे सकता हूं, लिबर्टी पे क्वेश्चन आया हुआ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल दीस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट, दे कैन आस्क अगेन। Election related questions, they will always ask you, okay, electoral bonds, EVMs, name it, political parties, तो इसलिए मैंने इसको अलग से मार्क किया हुआ है, political party disputes, make sure that you know these questions in and out. Then ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है, I am not very too sure on this part, but NCT of Delhi, पुडुचेरी के बीच में न्यूज में था, so make sure that you know NCT of Delhi and Union Territory, LG and all these parts in and out also, this is very very important. फिर ये I don't know why, but I am just pointing, अब ये मैंने बोला my choice है, तो my choice का मतलब है environmental related questions, NGT, ये सारे questions पर chances है, tribunalization, okay, पर बहुत सारे questions बनते हैं। So very very important on this part, that is the entire context of the entire scenario here. So let us look at these questions, but मेरी फिर important बात है, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, वो जरूरी बात है, पहले करना है ब्रेड एंड बटर क्वेश्चंस, फिर करने हैं करंट अफेयर्स, फिर करना है ट्रैप, फिर आना है माय चॉइस पे। नहीं सर हम पहले माय चॉइस कर लेंगे, अरे बाबा सीक्वेंस होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, एंड सो सो। सो प्लीज डिसाइड योर प्रायोरिटीज, डिसाइड योर ओन टॉपिक्स, लीव द कंफर्ट जोन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है माय फ्रेंड्स कि तुम में से कुछ लोग होंगे जिनको यूनियन पूरा आता होगा, फंडामेंटल राइट्स आता है, छोड़ दो उसको, हो गया यार, हो गया। Leave your comfort zone, go to the next phase, okay, go to the next phase, don't stay in the bread and butter area, go to the trap area, go to the current affairs area, and so on and so forth. Leave the comfort zone. Physics में बोलते हैं ना, it is not distance upon time, it is displacement upon time. That is what work done is. So make your own priorities, and a prioritization is the entire game of what is called as preparation. So make sure that you do this, and now थोड़ा सा रेफरेंस टू द इंटरनेशनल एरिना क्वेश्चन, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पढ़ोगे ना माय फ्रेंड्स, उसको जीएस के कॉन्सेप्ट से पढ़ना, स्पेशली दोस्त जो पीएसआईआर के फॉर्म में पढ़ रहे, प्लीज डोंट गो इनटू द थीम्स ऑफ दैट पार्ट। यहाँ पर बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्चुअल या फिर वो थीमेटिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके दो तरीके, या तो तुमने खुद नोट्स बना लिए तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने तुम्हें वीडियोस बनाए, make sure that you re-watch those videos but at a very fast pace. तो उसको इनिशियली क्विक स्पीड में करो और इसमें गेस वर्क मत करो। कुछ चीजें जो कॉमन सेंसिकल है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसमें एक्सपर्ट टिप क्या है? चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, यूएनओ, सार्क, बायलैटरल और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? कोई बड़ा तीर नहीं मारा, और तीर मारने की जरूरत भी नहीं। इन्हीं क्वेश्चंस को करो, इन्हीं क्वेश्चंस को करो, लेकिन फास्ट करो। Please remember, don't go into too much of depth of it. So जब चाइना कर रहे हो, तो try and understand without doctrines, without dogmas, you can start memorizing these questions and make sure that you do it. Very very important.
डोंट गो इनटू द गेस वर्क। ओके, गेस वर्क मतलब गेस वर्क सर यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं। इन द टोटल टाइम पीरियड दैट यू हैव, सिर्फ टॉप 10 क्रूशियल टॉपिक्स कर लो, दैट्स इट। इंटरनेशनल रिलेशन आईआर के टॉप 10 क्रूशियल टॉपिक्स कर लो, दैट शुड बी मोर देन इनफ विद मैटर्स ऑफ दिस पार्ट। एक ओपन सीक्रेट और है सर, ओपन सीक्रेट ये है कि इस टाइम पे ना बेटा तुम बुक पढ़ोगे, फिर बुक पढ़ने के बाद उसके बाद तुम रिवाइज करोगे कि सर एमसीक्यूज कर लेते हैं। उल्टा कर लो ना यार, मेरे तरीके मतलब एमसीक्यूज कर लो यार, जहां फंसे वो थ्योरी कर लो अगर तुम्हारे पास टाइम बचा तो। अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटाइज ऑन एमसीक्यूज, डू हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज, जितना कर सकते हो करो, बट स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। फिर मेरी 10-10-10 सीरीज जो है या हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज की सीरीज है वो देख लो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन, जो मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स तो मेरी बात मान चुके। अब उनके कमेंट्स देखते हुए समझ में आता है, सर हमें पहले लगता था बड़ा मुश्किल है, अब सब कुछ समझ आ गया। आई लव यू ऑल यार, मैं तुम्हें इजी करने के लिए आया हूँ। I am here to support you. I am here to create the next solid future bureaucracy of this country. I'll give you the best on this part. Don't worry on this part. लेकिन previous year questions कर लो, because यूपीएससी सिविल सर्विस में कुछ हद तक रेपिटेशंस होते हैं। सर कहाँ सर क्वेश्चन रिपीट थोड़ा होता है? अरे बेटा क्वेश्चन ही रिपीट होता, वो क्वेश्चन की थीम रिपीट होती है। ओके, तो तुम्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछेंगे, फिर थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पूछ लेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलेंगे, कुछ ना कुछ रिलेटेड गवर्नमेंट आंसरेबिलिटी आ जाएगा। सो इसका एक तरीका है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन आया, अगर कुछ भी क्वेश्चन आया, उसके चॉइसेस आई ए बी सी एंड डी, तो सपोज ए ठीक है, तुमने देखा सर ए था ठीक, मैंने एकदम सही आंसर दिया, बिंदास परफेक्ट। अब बी और सी और डी क्यों ठीक नहीं है ये भी जरूर माफ कर लो, बिकॉज हो सकता है द नेक्स्ट ईयर और द नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करा जिसकी चॉइस का आंसर बी हो। सो एक ही क्वेश्चन से 4 फैक्ट्स निकलेंगे, तो क्या होगा, स्लो जाएगा लेकिन स्टेडी जाएगा, और वो तुम बनाओगे व्हिच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो जो मैं बार बार बोलता हूँ मैट्रिक्स बनाओ, कनेक्शन बनाओ, सो गो कनेक्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये करना की कोशिश करो। सबसे जरूरी है माय फ्रेंड, जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये तब तक चलेगा जब तक तुम्हारी गाड़ी चल रही होगी, इन द सेंस कि तुम्हारा ब्रेन भी एक ऑर्गन है, तो अगर ब्रेन कोलैप्स कर जाएगा करोगे क्या, फायदा क्या है, व्हाट्स द एडवांटेज। सो प्लीज मेंटेन बैलेंस, अभी भी बैलेंस नहीं सर, 3 दिन बैलेंस, हम 24 घंटे जाग के जाएंगे, क्या फायदा होगा मेरे बच्चे। योर ब्रेन विल कोलैप्स ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर, उस दिन बड़ा भयंकर प्रेशर होने वाला है। तो जो एटलीस्ट द फर्स्ट टाइमर्स है, जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स है, उनको मालूम नहीं तुम्हारे साथ एग्जाम में बहुत कुछ जाएगा। क्या जाएगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, हाँ ये भी साथ में जाएगी, बुआ जी, मासी जी, ताई जी, पड़ोसी जी, आंटी जी, अंकल जी, दोस्त जी, दुश्मन जी, उनकी नजरें देख क्या होने वाला है, गर्लफ्रेंड जी, बॉयफ्रेंड जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स जी, ओके, तुम्हारे अंदर की टेंशन, या मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, सारी उम्मीदें सब जाएगी, सब लेकर जाएगा तुमको अंदर, वो बोझ तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। तो उस दिन इन सबको छोड़ो, पहले तो वो बोझ कम करो और फिर अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को रिलैक्स करके जाओ। उसका एक बड़ा सिंपल सा नियम, एटलीस्ट फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, मेंटेन न्यूट्रिशन एंड मेंटेन हाइड्रेशन, बहुत सारा पानी पियो, अच्छा न्यूट्रिशन खाओ और फ्रेश होके जाओ, वरना तुम उस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते। ये ऑफिसर सेंट्रिक एग्जाम है, UPSC does not select students and makes them into officers. UPSC chooses officers among students, और UPSC के ऑफिसर्स को प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। सबसे $1 million टिप्स, ये $1 million तो मुझे मत देना, बट अभी के लिए $1 million टिप्स देख लो। अगर क्वेश्चन में शब्दों का प्रयोग हो, ऑलवेज, नेवर, ऑल, नॉट, के नॉट, तो तुम्हारा अलार्म सिग्नल ऑन होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा राइट या रॉन्ग, मैं बोल रहा अलार्म सिग्नल, ध्यान से। एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत ध्यान से, नेवर कैन द प्रेसिडेंट डिसाइड ऑन लेजिस्लेटिव मैटर्स। थोड़ा सा सोच लो, कोई गड़बड़ तो नहीं, नेवर, नेवर इज अ वेरी डेंजरस वर्ड, सो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस पार्ट। एक और इंपॉर्टेंट बात है, एलिमिनेशन एमसीक्यूज में आएगा, इट इज अ वेरी रियल स्ट्रेटजी। जैसी बात है, एलिमिनेशन कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता, मैंने बोला है, लेकिन ये एक बड़ी रियल स्ट्रेटजी है। नहीं सर, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ तो यूपीएससी सिविल एग्जामिनेशन में तुम देख लेना कब है। Which of the following are the discretionary powers given to the governor of a state?
1. Sending a report to the President of India for imposition of the President's rule. 2. Appointing the ministers. 3. Reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the President of India. Making the rules to conduct the business of the state government. Select the correct answer using the codes given below. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 and 4. अब इसके 4 डिफरेंट अप्रोचेस है। एक अप्रोच है तो भाई ये कैसा क्वेश्चन, देखा ही नहीं जा रहा सर, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, छोड़ दो ये बात। दूसरा होगा जो इसको बोलेगा इनी मीनी माइनी मो, सर मेरे को गैम्बलिंग है, मेरे डीएनए में गैम्बलिंग है, या तो ए बी सी डी, सी है सर इसका आंसर, डी है नहीं सर बी है, ये होंगे। तीसरा भी होता है जो बड़े मेहनती लोग होते हैं, बड़े ऐसे उनके मन में जो फीलिंग होती है ना, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे सर, हम मेहनत करेंगे, एक एक वर्ड को देखेंगे चाहे 5 मिनट लग जाए। और फिर एक होता है वो शातिर खिलाड़ी, वो जो मुझसे पड़ा हुआ वो इसको ऐसे ध्यान से देखेगा, बोलेगा सर एक बात बताओ, गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया होता है, अगर उसकी मर्जी चल जाए ओके इन अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, तो जो यूनियन गवर्नमेंट चाहेगा वही स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनेगा। हाँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये चॉइस तो गलत है। हाँ अगर ये चॉइस गलत है सर तो ये भी गलत है, हाँ सर तो ये भी गलत है, हाँ सर तो ये भी गलत है, हाँ सर आंसर बचा हुआ बी। ओ आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्मार्ट वे? 3 सेकंड लगे बेटा, 3 सेकंड, दैट्स इट। तो आंसर हमारा पक्का ठीक आएगा और यही आंसर है। ओहो सर सर्च रहा हूं मैं, एक बार होने से क्या होता है, एक और ले लेते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, which of the following are associated with planning in India? Sir, the Finance Commission, the National Development Council, Union Ministry of Rural Development, Union Ministry of Urban Development, Parliament. Select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 3, 1, 2 and 5, 1, 3 and 4, 2 and 5, 1, 2, 3 and 4. फिर से 4 लोग, एक भगवान जाने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पता नहीं कुठे आए, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। ओके दूसरा जो इनी माइनी मो करेगा, तीसरा मेहनत का सोचेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्या क्या करते हैं, तीसरा ओके, और चौथा जो मेरे वाले होंगे, जो लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा बोलेगा सर एक बात बताओ, ज्यादा टेंशन मेरे को आगे का तो देखने का ही नहीं है। फाइनेंस कमीशन सर रिकमेंडेशन करता है, प्लानिंग नहीं करते। Finance Commission recommends the distribution of revenue between the center and the state, okay, and then the augmentation of consolidated fund, etc., to help the local governments and so on. Recommendary body है, planning का काम हमारा नहीं है, ठीक है यार। तो ये तो हम which of the following are associated with planning, तो 1 तो नहीं है ना बाबा, नहीं 1 नहीं है, ये नहीं है ना, ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, अरे नहीं सर ये ही रहेगा। ओह मैंने तो आगे पढ़ना ही नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड, बाकी तुम लोग पढ़ लो। ऐसे बनते हैं टॉपर्स माय फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं ज्वाइन मी, मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू गो फॉर विक्ट्री। सर एक और अच्छा एक और, अरे यार एग्जांपल्स की कमी है, गुस्सा आ रहा है तुमको, एक और लगा दो चलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट? Preparation of agenda for cabinet meetings, secretarial assistance to cabinet committees, allocation of financial resources to the ministries. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3. सर मेरे को नहीं आता, फिर से वही, मुझे नहीं आता, मुझे आता है। सो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एक ऐसा टॉपिक था जो मैं मिस कर गया, बाकी सब मैंने पढ़ लिया। काय को पढ़ना, ये तुम्हें मालूम नहीं है? एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द मिनिस्ट्रीज लोकसभा करता है, बजट, अरे हाँ सो ये तो नहीं है बिल्कुल सर, तो ये उड़ गया सर, हाँ सर ये उड़ गया। अब बचा ये सर, कितना ही अजीब प्रश्न है, कैबिनेट कमिटी सेक्रेटेरिएट क्या कर रहा है सर? सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट कमिटीज, मतलब क्या है, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेक्रेटेरियल असिस्टेंस। सर इतनी ज्ञानवर्धक बात आपने पता ही कैसे? वाह व्हाट सिंपल commonsensical, this is both of them are correct choices, तुमने eliminate कर दिया जो तुम्हें tough था, and this is how you win. So बेटा elimination को एक तरीका बनाओ and you can certainly ensure a very good important। एक और बात, चाहे कुछ कर लो until unless तुमने कोई मोती दान किया होगा,
कोई ना कोई स्ट्रेंज क्वेश्चन आके रहेगा, इट विल हैपन, ओके, लर्न टू लिव विद इट। मैंने तुम्हें खुद ये बात बताई, मैंने लास्ट ईयर बहुत क्लेम किया कि 19 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस मैंने वही पढ़ाए जो स्टूडेंट्स को मैंने क्लियरली, ऐसे नहीं था मजाक में, पासिंग रेफरेंस नहीं था, और बड़ी मेरी तारीफ हुई, लेकिन 20th क्वेश्चन स्ट्रेंज क्वेश्चन था, और आई हैव टू गिव इट एंड आई हैव टू लिव विद इट, ओके। तो या तो तुम 100 और 100 की कोशिश में जाओ और भगवान जाने डिसअपॉइंट होते जाओ, या फिर लर्न टू लिव विद इट, इट इज ओके। प्लीज रिमेंबर, अगर ये तुम्हारे लिए स्ट्रेंज है तो तुम्हारे साथ में बैठे हुए वाले के लिए स्ट्रेंज होगा। ये कोई ऐसे एग्जाम तो है नहीं जिसमें 100 और 100 स्कोर ही करोगे तो ही पास होगे। यू हैव टू डिस्ट्रॉय द कंपटीशन एंड दैट इज व्हाट इज ऑलवेज पॉसिबल, सो लर्न टू लिव विद इट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात माय फ्रेंड, कि तुम एग्जाम में जाओगे ना बेटा, तुम्हें मैं जितना मर्जी रेडी करूं, you have to fight your own war. The map is not the territory. It is very very important. मैप में देखो, ओहो ये छोटा सा घर है, पता चले वहीं पर ही सारे के सारे दुश्मन बैठे हुए। It is certainly not the so-called theoretical knowledge that can get converted into practical. तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, एब्सोल्युटली रेडी करो, और अपने आप को उस मेंटल फ्रेम में लाओ कि मैं उस दिन आई विल रिएक्ट एज द सिचुएशन हैपेंस। तो क्वेश्चन कभी कभी, जैसे पिछली बार किसी और सब्जेक्ट में शायद बहुत टफ आ गया, कोई बात नहीं, अपना मेंटल फ्रेमवर्क रेडी रखना, और स्पेशली जो मुझसे पढ़े हुए, प्लीज हैव फेथ कि तुम्हें 99.9% स्टूडेंट से ज्यादा आता है। सो डोंट वरी ऑन दिस पार्ट, वी हैव डन इट इन इनफ डिटेल। अपने वर्क पे फेथ रखना, अपने पेरेंट्स के, अपने गुरु के आशीर्वादों पर फेथ रखना, एंड गो फॉर दिस एग्जाम। It is a very very important exam, but this is also an exam of your character, of your strength, of your faith, and make sure that you do the best of it. Those who have yet not taken this exam, or those who are preparing for this exam in the future, we'll be very happy to teach you in the future. For the rest of you who have taken this exam on 10th of October, I wish you all the best, do very well, and in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.